Good morning, students. So today we'll continue chapter 7, part 5 of the video. We were doing chapter 7, NCERT से कर रहे थे हम. चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज 7.1 अब तक हमने कर लिया. 7.2 एंड 7.3 एक्सरसाइज रिमेनिंग और इसमें 7.4 एक्सरसाइज इस बार इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में आपके. चलिए 7.2 एक्सरसाइज से पहले, बिफोर डूइंग 7.2 एक्सरसाइज, वी हैव टू कवर 2 थ्योरम्स and these theorem are in part of your syllabus and these are important theorems. Theorem number 7.2 from NCERT, the statement of the theorem is angle opposite to the equal sides in a triangle are equal. So that means if we are given a triangle, then the angle opposite to equal sides are equal. The angle opposite to equal sides. So if in a triangle, suppose 2 sides are equal, then the angle opposite to the equal sides must be equal. That is our goal to prove. So let us take this triangle ABC and suppose we know that this AB length and AC length is equal. So whatever be the value of this angle and this angle, but definitely these two angles must be equal. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये बनेगा, ये साइड के ऑपोजिट एंगल ये बनेगा. क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल गिवन है तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. इस थ्योरम को आप पहले भी आपने अगर पढ़ रखा हो तो इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलिस या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. दिस थ्योरम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं. थ्योरम को 7.2 थ्योरम को प्रूव करते हैं. तो व्हाट वी आर गिवन इन दिस? सो वी आर गिवन दैट अ ट्रायंगल एंड 2 साइड्स आर इक्वल. सो let us take the given information. The given is, suppose we have given triangle ABC with 2 equal sides, say AB and AC, they are equal. Let us draw the figure based on given information. A triangle ABC, a triangle ABC with AB equals AC. Now what we are required to prove here? So let us write to prove. So we need to prove that the angle opposite to equal sides are equal. So the equal sides are AB and AC and their opposite angles are AC के opposite angle B and AB के opposite angle C. Name them angle 1 or 2, or you can even simply write angle B equals to angle C or 1 equal to 2, whatever you want to write. All right, now this is to prove given figure. In order to prove this, now we need to think that how you will prove this angle B equal to angle C. Since there is only one triangle, so we need some construction so that this one triangle can be divided into 2 triangles and then we use some congruency rule and prove that the 2 angles are equal. So we need some construction. और construction करने के लिए अब क्या चाहिए हमें? Let us do one thing. A point से हम, ये एक हमारे पास जनरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. Let us draw a perpendicular from point A on side BC. So this angle must be 90 degree. Obviously from this side it is also 90 degree because it is the perpendicular. Now see, because of this perpendicular we can see here there are 2 triangles ABD and ACD. Now can we prove that these 2 triangles are congruent? If we able to prove these 2 triangles are congruent, then we can definitely say angle 1 equal to angle 2 by CPCT. So can you prove this? See,
angle, this angle 90 degree and this angle 90 degree, they are equal in the two triangles angle. Okay, and AB equal to AC, it is also given. Now one more thing, this is angle, this is side 1 and 2, we have to prove that they are equal. So can you see AD as common side in the two triangle, both the triangles AD is the common side. So we have one side, one right angle and one side is common. So RSS is not rule, RHS is a rule. So you have to see that one side must be hypotenuse, and yes, AB and AC are the hypotenuse in the two triangles. So by RHS we can prove this. तो इसको और अच्छे से समझते हैं. अभी हमने क्या ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन डॉटेड में करते हैं. तो विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन की हमने ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. डायग्राम क्लियर? AD is perpendicular to BC. So this angle here, this angle is 90 degree and this angle is 90 degree. नेम कर लेते हैं एंगल का, इस एंगल को 3 रख लेते हैं और इस एंगल को 4. Both are 90 degree as AD is drawn perpendicular to BC. Okay, so now let us start the proof. Proof के लिए we'll start taking triangle ABC. तो in triangle ABD and triangle ACD, ABD triangle and ACD triangle, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले एक राइट एंगल मिल रहा है हमें, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री. और इसका रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन. द रीजन इज कंस्ट्रक्शन वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर. नाउ राइट एंगल, ना हाइपोटेन्यूज. राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो AB, और राइट एंगल 4 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज AC. AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन in the question that two sides are, opposite sides are equal. Now can we have one more information? Yes, AD equals to AD. First third ladder दोनों ट्रायंगल के सेम है. AD equal to AD. Reason, it is common. This side is sharing common side among these two triangles. So by this rule, what we have, right angle, this is hypotenuse, this is side. So by RHS rule, we can say definitely triangles are congruent, and by since the triangles are congruent, we can say by CPCD the angles are equal. So therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS rule, and that implies that angle B, this vertex angle B equals to angle C, that is angle 1 equals to angle 2. A reason, CPCD, corresponding parts of congruent triangle, and that is what we are required to prove, hence prove. So this theorem is very much important for exam point of view. Theorem आ सकती है angle opposite to prove that in a triangle angle opposite to equal sides are equal. So what do we have to do? Give one figure to prove construction and then proof. You have to state the rule. अगर आप ये रूल नहीं बताओगे तो आपका हाफ मार्क कट जाता है. यहाँ पर CPCD नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट जाता है. ये लॉजिक प्रॉपरली बताने हैं और इसी मैनर में बताने हैं. नेमिंग प्रॉपर करनी है. कंस्ट्रक्शन गिवन फिगर टू प्रूव, अगर ये नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं. दैट वाज थ्योरम नंबर 7.2. इस थ्योरम को करने का एक मेथड हो रहा है हमारे पास. एक और मेथड क्या है? अगर हम कंस्ट्रक्शन में सेकंड प्रूफ बता रहा हूं मैं इसका, अल्टरनेटिव प्रूफ, अनदर वे टू प्रूव इट. सेकंड में हम इसका कंस्ट्रक्शन में क्या करें? कंस्ट्रक्शन करते टाइम हम एक काम कर सकते हैं, AD को मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. हम BC के ऊपर A पॉइंट से मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ मीडियन AD ऑन साइड BC. तो जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा. हमारे पास ट्रायंगल थी ABC और हमने मीडियन ड्रॉ किया. तो जो मीडियन होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. तो जो D पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट बनेगा और ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी. ये कॉमन लेंथ है और ये क्वेश्चन में ही इक्वल दे रखी थी. अब ये दोनों ट्रायंगल करना सेम है, बस अब ये दोनों ट्रायंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? ट्रिपल एस से, साइड 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 से.
कैसे, देखो ये कॉमन साइड है, ये दोनों इक्वल बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट एज एडी वाज मीडियन, हमने ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन से, और ए बी इक्वल टू एसी हमें दिया हुआ था। तो बाय एसएसएस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड यू कैन से दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीडी। तो ये था आइडिया सेकंड मेथड में। चलिए थ्योरम 7.3 करते हैं, और 7.3 थ्योरम इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब इसका ऑपोजिट। तो 7.3 थ्योरम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 7.3 थ्योरम कहती है इफ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन इफ इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, थ्योरम की स्टेटमेंट, इन अ ट्रायंगल साइड्स इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स। तो इस बार हमें एंगल ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट एंगल इक्वल दे रखे हैं। पहले ऑपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर रहे थे, साइड्स इक्वल दे रखी थी। इस बार क्वेश्चन में दिया है साइड्स इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें उन साइड्स को इक्वल प्रूव करना है जो ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल गिवन है। तो अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। प्रूव करने के लिए फिर से गिवन में अ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी विद एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ले लेते हैं। फिगर, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल में हमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिए हुए हैं। फिर से वही पॉइंट है, कुछ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन तो चाहिए ही होगी। तो लेट अस ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, टू प्रूफ लिख लेते हैं एक बार, यहां लिख लेते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड एंगल सी के ऑपोजिट, सी के ऑपोजिट है ए बी और बी के ऑपोजिट है ए सी, तो ए बी को ए सी के इक्वल प्रूफ करना है। दैट इज द साइड्स आर इक्वल व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो साइड इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ए पॉइंट से लास्ट टाइम की तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसमें भी दोनों वे से काम हो जाएगा, मीडियन से भी और परपेंडिकुलर से भी। एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। कई बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो डी मिड पॉइंट बनेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो होता है, लेकिन ऐसा स्केलिन ट्रायंगल में जरूरी नहीं है। जनरल हर एक ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट वी आर नॉट श्योर। और स्केलिन ट्रायंगल है तो जनरली नहीं करेगा। तो हम एक ही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बस ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है। बीडी एंड डीसी दे आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस, तो हम उसको यूज नहीं करते। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, दैट वाज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ। अब हमें फिर से यही सोचना है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करें। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, एबीडी एंड एसीडी। सो प्रूफ, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप किस तरह से अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। एबीडी ट्रायंगल में ये एक एंगल गिवन है, ये एक एंगल गिवन है, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है। इनके नाम रख लेते हैं 1 और 2। अब दो एंगल मिल गए और ये साइड आपको क्या मिल रही है, कॉमन। तो एंगल साइड लग गया। तो सिर्फ देखने से भी आपको इंफॉर्मेशन पता लग जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कुछ किया जा सकता है। तो एंगल बी equals angle C, it is given in the question. Angle 1 equals to angle 2, it is by construction, each 90 degree by construction. And the third logic is AD equals to AD, and the reason is common side. So therefore you can say triangle ABD is congruent to triangle ACD by which rule, एंगल साइड रूल। उसी ऑर्डर में लिखा मैंने, एंगल फिर साइड, सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने प्रूव किया। सो सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी वी कैन से द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, किसी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, तीनों साइड्स तीनों एंगल, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इस ट्रायंगल का कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। मतलब इस ट्रायंगल में मैंने अगर कोई साइड लिया है तो उस ट्रायंगल की उसी साइड के इक्वल होगी जो कॉरस्पॉन्ड करेंगी। तो वो लेटर से ही कॉरस्पॉन्डिंग पता लगता है। अब फर्स्ट सेकंड लेटर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी आ रही है और वहां से ए सी, तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। और इसके लिए आपको डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं है, आपने ट्रायंगल ये लिखी है, कंफर्म्ड आपको एक कॉन्ग्रुएंट है,
तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स के अकॉर्डिंग जो साइड्स बनेगी वो इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। और आप डायग्राम में देखो यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू ए सी, that is by CPCT and that is hence proof. So we have proved that the opposite sides to the equal sides to the equal angles are also equal. जो sides equal angle के opposite given है, इस ये angle equal है, तो इनकी opposite sides equal होंगी। जैसे अगर मान लो ये angle हमें 50 डिग्री given है और ये भी 50 डिग्री given है, ये side हमें 7 given है, तो definitely ये side भी कितनी होगी, 7 ही होगी, क्योंकि ये दोनों angle equal है तो इनकी opposite side equal होंगी। ये हमने result proof किया।